السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان اصول فقہ کے اسباق چل رہے ہیں۔ استنباط احکام میں ہم لفظ کے وضع کے اعتبار سے اس کی قسمیں دیکھ رہے تھے، تو اس میں جی تو ہم نے جو ہے وضع کے اعتبار سے لفظ کی قسمیں ہم دیکھ رہے تھے۔ وضع کے اعتبار سے جب ہم قسمیں دیکھ رہے تھے تو اس میں ہمارے لیے ہم نے دیکھا خاص کے احکام، اس میں ہم نے دیکھا خاص کے احکام، پھر عام دیکھا۔ ٹھیک ہے، لاسٹ کلاس میں ہم نے عام کے بارے میں دیکھا تھا۔ اب اس کے بعد دو موضوع باقی رہ جاتے ہیں، اس میں تیسرا اور چوتھا، یعنی مشترک اور معول۔ یہ اہم موضوع ہے، بہت سی مثالیں میں آپ کو بارہا کہہ رہا ہوں کہ جو فروعی اختلاف ہوتے ہیں نا، ہم اس کو صرف حدیث کے مخالف ہیں یا حدیث کے جو ہے سامنے والے جب حدیث پیش کر دیتے ہیں تو اس کی بنیاد پر ہم جج کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کو اصول معلوم ہوگے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کسی مسئلے کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، یا فقہ حنفی میں، یا اسی طرح جو بھی فقہ ہو، فقہ شافعی ہو، فقہ حنبلی ہو، فقہ مالکی ہو، تو وہ لوگ اس مسئلے میں اگر دوسری رائے اختیار کرتے ہیں تو وہ بنیاد ہوتی ہے ان کے اصول، اور وہ اصول مستنبط ہوتے ہیں قرآن اور سنت سے ہی، ایسا نہیں کہ اپنے گھر سے انہوں نے اصول بنائے۔ تو ابھی اس سے پہلے جو ہے عام کی تخصیص کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ بالکل باریک بات تھی کہ فقہائے احناف جو ہے عام، جو قرآن کا عام ہوتا ہے، جو عام ہوتا ہے، اس کو قطعی مانتے ہیں۔ جب وہ اس کو قطعی مانتے ہیں قرآن کے عام کو، تو وہ خبر واحد سے اس کی تخصیص نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، دیگر فقہا جو ہے اس کو جو ہے قطعی نہیں مانتے، ظنی مانتے ہیں۔ تو جب وہ اس کو ظنی مانتے ہیں تو وہ اس کو خبر واحد سے اس میں تخصیص پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی یہ بنیادی فرق ہوتا ہے۔ جب آپ کو اصول معلوم ہوگا تو اب کوئی کتنے سے بھی بڑی دلیل لا کر جو ہے آپ کے مسئلے کے خلاف بات کرے گا تو آپ کہیں گے کہ بھائی ان صاحب کو ہمارے اصول نہیں پتا۔ اگر اصول پتا ہوتے تو وہ یہ اعتراض ہم پر نہیں کرتے۔ تو ہر ایک کے اپنے اصول ہوتے ہیں اور اسی اصول کی بنیاد پر وہ لوگ چلتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ اصول جو ہے قرآن اور حدیث سے کتنے ہم آہنگ ہیں اور ان اصول کی بنیاد پر وہ کتنا چل رہے ہیں۔ اب جو نئے فرقے وجود میں آتے ہیں ان کے اپنے اصول کچھ ہوتے نہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور وہ جو ہے کبھی ایک مسئلہ بیان کر دیتے ہیں، کبھی دوسرا مسئلہ بیان کر دیتے ہیں، کبھی تیسرا بیان کر دیتے ہیں۔ لیکن فقہا نے اپنے اصول مرتب کیے ہیں، اسی اصول کی بنا پر ان کے اختلافات ہوتے ہیں جو آپ فقہ کی کتابوں میں دیکھو گے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم چلتے ہیں مشترک اور معول کے بارے میں۔ مشترک وہ لفظ ہے جو دو یا اس سے زیادہ معنوں کے لیے وضع کیا گیا۔ تو مشترک نام سے ہی معلوم ہو رہا ہے اشتراک، مل کر ہونا۔ کمپنی کو بھی جو ہے شرکہ کہا جاتا ہے نا، جس میں مشترک پارٹنرشپ ہوتی ہے۔ تو مشترک وہ لفظ ہے جو دو یا دو سے زیادہ معنوں کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ جیسے یہ لفظ آپ کو معلوم ہوگا عین، عین جو ہے اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک آنکھ کے بھی آتے ہیں، ایک چشمے کے بھی آتے ہیں۔ آپ نے کیا ہے الفقہ المیسر میں دیکھا ہوگا کہ عین مائع مطلق کے بارے میں جب ذکر ہوا تو وہاں پر چشمہ بھی آیا تھا، اور وہ بھی چشمہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا، آنکھوں کو لگاتے سب۔ تو اس کے معنی آنکھ کے بھی ہیں اور پانی کے چشمے کے بھی ہیں۔ یا اسی طرح جو ہے اگر آپ نے، ہم لوگوں نے جب نحو پڑھی تھی تو ہم نے من کے جو ہے بہت سے معنی دیکھے تھے۔ ان میں سے ایک معنی دیکھے تھے کہ جو ہے من تبعیضیہ ہوتا ہے، یعنی اس کے معنی بعض کے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک معنی تو جو ہے ہم جو فرم کے یعنی سے کے کرتے ہیں، یعنی ابتدا سے، کسی کام کی یا جگہ کی ابتدا سے۔ تو یہ دونوں بھی معنی ہوتے ہیں۔ تو مشترک کس کو کہتے ہیں؟ ایسے لفظ کو کہتے ہیں، یا وہ لفظ ہے جو دو یا دو سے زیادہ معنوں کے لیے وضع کیا گیا ہو، بنایا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، اتنی بات کلیئر ہے۔ اب اسی طرح آپ بہت سے الفاظ نکال سکتے ہو۔ اب یہاں پر مثالوں میں بھی جو ہے قرآن کریم کے بعض یہ احادیث کے الفاظ آ رہے ہیں، ہم اس سے ہی تفصیل کو سمجھیں گے۔ اب یہ امپورٹنٹ بات آ رہی ہے یہاں پر۔ مشترک کا حکم یہ ہے کہ دوسرے قرائن کے ذریعے اس کے متعدد معنوں میں سے ایک معنی کی تعیین کی جائے گی اور اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ دیکھو بھائی، سیدھی سیدھی بات ہے، یہیں پر فقہا کا اختلاف بھی ہوتا ہے کہ وہ معنی کی تعیین میں اختلاف ہوتا ہے۔ عینن ایک لفظ ہے، یا تو آپ اس سے پانی کا چشمہ مراد لے سکتے ہو یا آنکھ مراد لے سکتے ہو۔
अब आप एक अरबी अदब की किताब पढ़ रहे हो, तो आप बताएं कि कब चश्मा इस्तेमाल करोगे, कब आंख इस्तेमाल करोगे। तो हम कहेंगे, आपका सीधा जवाब होगा कि हम सियाक और सिबाक को देखेंगे। हम क्या करेंगे? सियाक और सिबाक को देखेंगे, यानी हम क्या करेंगे? कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, ठीक है ना। इसी को जो है यहाँ पर हम कराइन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? कराइन कहते हैं। जैसे अब कुरान करीम में ये मशहूर मिसाल है, फुकाहा का जब इख्तिलाफ होता है तो फुकाहा के इख्तिलाफ को समझाने के लिए ये मिसाल हमेशा इस्तेमाल होती है। वल मुतल्लकातु यतरब्बसना बिअंफुसिहिन्ना सलासता कुरू, सूरह बकरा की 228वीं आयत है। यानी जिन औरतों को तलाक दिया गया है वो जो है 3 कुरू इद्दत गुजारेंगे। मुतल्लका औरतें 3 कुरू इद्दत गुजारेंगी। अब मुसन्निफ फरमाते हैं कि कुरू के मायने हैज के भी आते हैं और तुहुर के भी आते हैं, यानी नापाकी के भी आते हैं और पाकी के भी आते हैं। लेकिन अहनाफ ने हैज का मायना मुराद लिया है कि एक ही मायना मुराद ले सकते हैं, एट ए टाइम 2 मायने नहीं ले सकते, दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन के। तो अहनाफ ने यहां पर जो है नापाकी का यानी हैज का मायना मुराद लिया है। अब क्यों लिया है? जैसे यहां पर कराइन थे, अहनाफ के पास भी दूसरे कराइन मौजूद है। वो क्या है? यहां मुसन्निफ बता रहे हैं। पहली चीज, इद्दत का मकसद फरागत रहम को जानना है, और ये है से ही मालूम होता है। यानी जो औरत के लिए जब शौहर उनको तलाक दे देते हैं, तो तलाक देने के बाद इद्दत गुजारने का जो मकसद होता है, वो मकसद इसलिए होता है कि उस औरत के रहम में उस शौहर का कोई औलाद ना हो। ठीक है, इसीलिए जो है जो औरतें हामिला होती हैं उनकी इद्दत वज़े हमल, जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि वज़े हमल होती है। तो अब ये जानने का बेहतरीन जरिया क्या होता है कि ये इससे पता लगाया जाता है कि वो औरत को जो है हैज आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हैज आ रहा है तो जो है 3 मरतबा हैज तक देखेंगे। पहला पॉइंट तो मुसन्निफ ये फरमा रहे हैं। दूसरा फरमा रहे हैं कि हदीस शरीफ में बांदी की इद्दत के लिए 2 हैज करार दिया गया। पहले जमाने में बांदियां होती थी, जैसा गुलाम होते थे, अलग टॉपिक है वो लंबा, के गुलाम बांदी का क्या सिस्टम था। लेकिन जो बांदी होती थी हर जगह जो है वो हाफ होता था, ठीक है ना। तो उसकी इद्दत भी क्या थी? 2 हैज थी। अब 3 का हाफ 1.5 हैज तो नहीं कर सकते, तो उसकी इद्दत क्या थी? 2 हैज थी, और हदीस में उसी का जिक्र है 2 हैज की। तीसरा, कुरान ने हैज से मायूस औरतों की इद्दत 3 माह मुकर्रर की है, सूरह निसा की आयत नंबर 4। यानी जिन औरतों को हैज नहीं आता। तो ये 3 बड़े स्ट्रॉन्ग कराइन थे, जिसकी बुनियाद पर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कुरूब से मुराद जो 2 महीने थे, एक महीने थे हैज का और एक महीना था तुहुर का। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने हैज का माहिर माना लिया है, और उसके जो है बस बुनियादी करायन आपको यहां पर जिक्र कर दिए। तो जब एक महीने लेंगे तो आप दूसरे महीने वहां पर मुराद नहीं ले सकते। जब एक महीना लोगे तो उस वक्त आप दूसरे महीने मुराद नहीं ले सकते। और यहां पर तो महीने भी बिल्कुल अपोजिट है कि इसको लोगे तो ये नहीं ले सकते, और ये लोगे तो इसको नहीं ले सकते, ठीक है। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इन कराइन की बुनियाद पर इस महीने को ले लिया। यहां तक बात क्लियर है? चलिए, अब उसके बाद जो है मुसरी फरमाते हैं कि तो मालूम हुआ कि इद्दत में असल जो है कहाँ, हाँ, वो हैज है। या दूसरी मिसाल, जैसे वजू के हुक्म में वम सहू बी रूसिकुम, और तुम अपने सरों का मसाह करो। अब यहां पर लफ्ज बा, हमने लफ्ज के बा के जो तकरीबन 10 मायने देखे थे इल्म नहव में। मुसन्निफ फरमाते हैं कि इसमें बा के मायने बास के भी होते हैं, जैसा आपको मालूम है कि जैसे मिन तबईजिया होता है, उसी तरह बा भी तबईजिया होता है। और बा जो है बयान के लिए भी आता है, यानी कोई बात को जो है एक्सप्लेन करने के लिए भी आता है। और कभी बा जो है जायद भी होता है, ठीक है। तो अब यहां पर मुसन्निफ इन 3 मायनों को लेकर बात कर रहे हैं कि बा का एक मायना क्या होता है? बास का होता है। दूसरा मायना क्या होता है? बयान के लिए आता है। और तीसरा मायना जो होता है वो जायद यानी एक्स्ट्रा के तौर पर भी बा इस्तेमाल होता है। अब मुसन्निफ फरमाते हैं कि अगर बा को बास के मायने में लिया जाए तो उसका मतलब होगा कि सर के कुछ हिस्से का मसा करना फर्ज है। सर के कुछ हिस्से का मसा करना फर्ज है, वरना पूरे सर के मसा के मायने होंगे। अगर बा के मायने बास के नहीं लेंगे तो जब क्या हो जाएगा, कुरान की आयत से पूरे सर का मसा करना हो जाएगा। अगर मायने बाज नहीं लिए गए तो पूरे सर का मसा
फर्ज हो जाएगा। ऐनाफ ने यहाँ बा को बाज के मायने में लिया है क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मौके पर वजू में सिर्फ चौथाई सर का मसा करना साबित है। तो ये करीना पाया गया कि भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा, ये एक मौके पर हमको जो हदीस मिली है उससे चौथाई सर, चौथाई कहते हैं 1/4, तो चौथाई सर का मसा करना साबित है। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथाई सर का मसा किया, तो अगर पूरे सर का मसा फर्ज होता था तो हुजूर चौथाई सर का नहीं करते थे, तो लाजिमन यहां पर बा के मायने क्या होंगे, बास के होंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहां एक बात को समझे, ठीक है, मैं तो खैर इख्तिलाफी बातों वाला आदमी हूं, लेकिन मैं दुरुस वगैरह में नहीं करता हूं, लेकिन उसूल फिक्र में अगर सामने वालों के एतराजात मैं आपके सामने नहीं रखूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि लोग धोखा कैसे देते हैं। तो एक साहब की वीडियो मेरे पास आई, अब आजकल का क्योंकि यूट्यूब का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो एक साहब ने अहनाफ के, ये अहनाफ का क्या, तमाम अइम्मा का मसलक यही है, ठीक है ना। हो सकता है कि वो बास के मायने में जो है फर्क हो, कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के 3 बाल भी गीले हो जाएं तो वो बास के हुक्म में आता है, वो अलग चीज है। लेकिन हर एक फकीह के पास, जहां तक मेरा इल्म है, कि उनके पास पूरे सर का मसा फर्ज नहीं है, सर के बाद हिस्से का मसा फर्ज है। और दूसरी चीज, पूरे सर का मसा कि इस तरीके से हाथ ले जाएं पीछे तक और फिर वापस ले जाएं, ये सुन्नत है। तो एक साहब हैं, थोड़ा दक्कनी जबान में, हैदराबादी लैंग्वेज में, एक्सेंट में, निजामाबाद के खाली बने हो, तो उस लैंग्वेज में जो है उन्होंने बयान किया। बयान में कहा कि जो है कि हदीस में जो है हम तो सुन्नत के हिसाब से वजू करते हैं कि हम पूरे सर का पीछे ले जाते हैं और जो है बाहर सामने लेकर आते हैं, और ये मुकल्लिद हजरात जो होते हैं या हनफी हजरात जो होते हैं वो क्या करते हैं, थोड़े को भी लगा लेंगे तो उनका वजू हो जाता है। तो यहां पर उन्होंने पूरे मक्र और फरेब के साथ काम लिया है, पूरे मक्र और फरेब के साथ काम लिया है। इन द सेंस ये है कि कोई भी हनफी शख्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर को जो है यहां पर हाथ लगा लेके वजू हो जाए, ऐसा कहता हूं। हर एक को जो मकतब से किताब पढ़ाई जाती है जिसमें वजू का तरीका होता है, उसमें यही बताया जाता है कि यहां से पूरा पीछे ले जाओगे और गुंजाइश हो तो सामने भी लेकर आओगे, इस तरीके से आपका सुन्नत के मुताबिक वजू होगा। लेकिन मसला यह है कि फर्क तो हो ना, कि फर्ज कितना है और सुन्नत कितना है। तो हम अमल करते हैं पूरी वजू करने में, या जितनी भी इबादतें हैं, जितने भी काम हैं, उसमें फराइज के साथ हम सुन्नत का एहतमाम करते हैं। लेकिन हम डिस्टिंग्विश करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं कि भाई ये चीज है ये फर्ज का दर्जा रखती है, ये चीज है ये वाजिब का दर्जा रखती है, ये चीज जो है सुन्नत का दर्जा रखती है, और ये मुस्तहब है। तो अब किसके छूटने से क्या हुक्म होगा, किसके छूटने से, मसलन नमाज पढ़ रहे हैं या वजू की मिसाल ले लें, कि किस चीज के छूटने से आपका वजू हुआ लेकिन नाकिस रहा, और किस चीज के छूटने से आपका वजू नहीं हुआ। तो अहनाफ कहते हैं कि कुरान करीम में क्योंकि 4 चीजों का जिक्र है, चेहरे का धोना, दोनों हाथ का कोहनियों समेत धोना, तीसरा सर का मसा करना, चौथा दोनों पैर टखनों समेत धोना, इन 4 चीजों का कुरान में क्योंकि जिक्र है, इसलिए ये 4 चीजें फर्ज होंगी। उनके अलावा बाकी चीजें जो है सुन्नत में आएंगी। तो एक बंदे को कामिल सुन्नत के हिसाब से वजू करना चाहिए, लेकिन कभी ऐसा मौका आ जाए जहां पानी की तंगी हो, ठीक है, तो वहां पर कम से कम इन 4 फराइज पर तो इत्तेफाक करेंगे। इनमें से अगर एक भी छूट जाएगा तो उस बंदे का वजू नहीं होगा। तो ये फर्क होता है एक मुज्तहिद की तकलीद में और आमी के जो है अपने किस्म से, अपनी तहकीक से, या आजकल के यूट्यूबर्स की बात सुनकर जिंदगी गुजारने में। फर्क समझ में आया कि मैं किस चीज की तरफ आपको ले जाना चाह रहा हूं। तो हमको हमेशा क्लियर होना है कि हमारे मसाइल हमारे सामने हों, कि फराइज को किस तरीके से, अब जैसा आप उसूल पढ़ रहे हैं उसके बाद भी आपको ये नहीं मालूम है कि भाई ये फर्ज में है ये सुन्नत में है, और कोई कह दे कि देखो ये तो इसको फर्ज नहीं मानते, और आप उसको सुन्नत में रख रहे हैं, और सुन्नत में रखने के आपके पास वैलिड रीजंस हैं, तो उसके बाद भी आप एहसास से कमतरी का शिकार होना, तो फिर ये बड़ी महरूमी की बात है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, मुश्तरिक आपको समझ में आ गया। और मुश्तरिक में जो है हम एक साथ 2 महीने मुराद नहीं ले सकते, दोनों में से एक को आपको फाइनल करना पड़ेगा, और फाइनल करने के लिए आप क़राइन की मदद लेंगे। अब मुश्तरिक से मुतालिक दूसरा हुक्म यह है कि बेक वक्त लफ्ज मुश्तरिक के मुतअद्दिद और मुख्तलिफ माने मुराद नहीं लिए जा सकते। ठीक है, बात हो गई है। मुश्तरिक के मुख्तलिफ मानों में से जब किसी को तरजीह दी जाए तो उसको कहते हैं मुअव्वल।
तो मुश्तरिक और मुअव्वल हो गए। तो अब जैसे जो है हमने कुरू में देखा, तो कुरू क्या हो गया, ये मुश्तरिक हो गया। ठीक है, दो दो महीने आ गए। अब इसमें से आपने कुरू में से एक महीने हैज को जो है तखसीस कर दी, तो अब इसको आप कहोगे मुअव्वल, इसमें तावील कर दिया, यानी मुश्तरिक जो थे उसमें से आपने एक महीने को फिक्स कर दिया। उसी तरह जो है वमसहू बिरऊसिकुम में वजू में क्या था, बा बिरऊसिकुम ये मुश्तरिक था। ठीक है, आपने क्या किया, चौथाई सर को जो है लेकर आपने क्या कर दिया, उसको मुअव्वल कर दिया, यानी बा के जो है बा को बास के मायने में लिखकर आपने क्या कर दिया, मुअव्वल कर दिया। तो ये हो गया मुश्तरिक और मुअव्वल। ठीक है, तो यहां पर हमारा मुश्तरिक और मुअव्वल का टॉपिक मुकम्मल होता है। और वजह के एतबार से जो किस्में हैं चार, यानी आम, खास और मुश्तरिक और मुअव्वल यहां पर हमारे मुकम्मल हुए हैं। इंशाअल्लाह हम आगे हकीकत और मजाज के बारे में देखेंगे।